ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣੋ ਔਰ ਸਮਝੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਿੰਤਾ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਚਿੰਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਿੰਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ। ਤੀਸਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥਾ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਧਰੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਰੰਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਜੋ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ, ਮਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਸਰ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਛਾ ਭਵਿੱਖ ਖੋਜਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਅੱਛਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤਲਾਕ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ, ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ।
तीसरा पॉइंट, किन्ने प्रकार ने चिंता दे। पहला नॉर्मल वरी, साधारण चिंता। दूसरा असाधारण चिंता। साधारण चिंता, यस परमेश्वर ने सानू सोचन समझन दी, सानू परमेश्वर ने बहुत ज्ञान दिता है कि असीं सोच समझ सकीए, उन्हें शक्ति दी है। वी हैव पावर टू थिंक, सही करना या गलत करना साडे को ये ताकत है सोचण दी। जो नॉर्मल चिंता हर एक मनुख के अंदर होंदी है और होनी भी चाहिए है। परमेश्वर का कलाम दसदा है कि चंगी चीज़ों वास्ते चिंता करो, परमेश्वर के कामां करन लई चिंता करो कि परमेश्वर अगे किस तरह तुसीं भले कामां नूं कर सकते हो, अते दूसरा दी भलाई उत्पन्न करन लई चिंता करो। परमेश्वर दा वचन खुद कहता है। सो एक है नॉर्मल चिंता, सही चिंता, और सानूं करनी भी चाहिए है। जिवें कि माँ बाप अपने बच्चों बारे कि असीं अच्छा भविख देना है अपने बच्चों को, और बहुत ही इनू नॉर्मल असी चिंता कह सकते हैं। साधारण चिंता इंसान के अंदर होंदी है, अपने किसी खास के लिए चिंता, जिसनों असी प्यार करते हैं उसदे लिए चिंता, अपने परिवार के लिए चिंता, प्यार। और जो चिंता करते जिहदे नाल प्यार करते उहदी तां असी चिंता करते हैं, इनू फिक्र कहते हैं। ठीक है जी, ये साधारण चिंता। दूसरी चिंता जिसनों असाधारण चिंता कहा जाता है, अते ये चिंता बहुत ही डेंजरस चिंता है, ये बहुत ही खतरनाक चिंता है, ये इंसान को खराब करती है। ये चिंता लैन परमेश्वर नहीं कह रहा। ये चिंता इंसान को पैरालाइज बना देती है, इंसान की सोचन ते समझन की शक्ति खत्म होनी शुरू हो जाती है जो इंसान असाधारण चिंता के वश दे विच आ जाता है, सोचना शुरू करता हौली हौली। और जो लगातार सोचता जाता है वो चिंता बहुत ज़्यादा वड्डी उसके जीवन च हो जाती है, क्योंकि इंसान का सारा ध्यान उस चिंता वाल लग जाता है। सो असाधारण चिंता इंसान को अधरंगी बना देती है, अते कुछ वो गलत स्टैप्स नू इंसान लेना चाहता है, शुरू कर दिंदा लेना। जो असाधारण चिंता फिक्र, असाधारण फिक्र वो अंदर आ जाता है, जिमें कि किते मैं बीमार ना हो जावां, किते मैनू कुछ हो ना जाए, होवेगा कि नहीं होवेगा, किस तरह होवेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। असाधारण चिंता इंसान के जीवन च काम करती है, जिस तरह की नॉर्मल साधारण चिंता तुहानूं मैं दस दी है। जो असीं चिंता करते हैं कि बीमारी चों बाहर आ पावांगे कि नहीं आ पावांगे, की खावांगे की पीवांगे, परमेश्वर कह रहा है तुसीं किसी गल की चिंता ना करो, की खाओगे की पीओगे कित्थे रहोगे। परमेश्वर सारियां नूं उन्हां दी ज़रूरतां मुहैया करवांदा है। जिहड़ा तुहाडा सृष्टि करता है, अगर उसने तुहानूं बनाया कि वह तुहाडी ज़रूरतां नहीं पूरा करेगा। वचन दसदा है कि जो परमेश्वर नूं लभण वाले ने, जो परमेश्वर का खौफ रखते हैं, डर रखते हैं, उन्होंने किसी चीज़ की घाट नहीं पैंदी। परमेश्वर उन्हां दीयां सारियां ज़रूरतां नूं पूरियां करता है। सो चौथा मेरा पॉइंट है, किहड़े तरीके अज इंसान इस्तेमाल करता है चिंता तो आज़ाद होने के लिए। फिर रिपीट करना है, पहला पॉइंट से मेरा चिंता की है अते उहदा असर की है, दूसरा उहदे की कारण हैं, तीसरा उहदे किन्ने प्रकार हैं, अते चौथे वाला असीं वध रहे हैं जो कि किस तरह चिंता तो छुटकारा पाया जा सकता है। मतलब तरीके, दो तरीके इहदे विच हन, एक संसारिक तरीका, दूसरा संपूर्ण शांति नूं पाउण दा तरीका, या आत्मिक तरीका या परमेश्वर का तरीका। संसारिक तरीका ते परमेश्वर का तरीका, ठीक है जी। वर्ल्डली वे एंड गॉडली वे, केड़ा तरीका तुसीं इस्तेमाल करना है। अज दा मनुख वो वर्ल्डली वे नूं इस्तेमाल कर रहा, संसारिक तरीके नूं इस्तेमाल कर रहा, और वो शांति पाने के लिए पता की कर रहा है। अगर तुसीं पुछोगे कि चिंता का ओपोजिट शब्द की है, उल्टा की है चिंता का, शांति। चिंता तो आज़ाद होने लिए इंसान की चाहता कि उसके अंदर की आवे, आराम आवे अति शांति आवे। संसारिक तरीका यह है, इंसान शांति पाने के लिए कुछ समय लिए अपनी चिंता तो आज़ाद होने लिए इंसान किहड़े-किहड़े तरीके इस्तेमाल करता, अज मैं तुहानूं दसांगा। स्टार्ट होंदा बिल्कुल छोटी चिंता तो, जो तुसीं बार-बार विचार करते हो साडे ते हावी होनी शुरू हो जाती है। इन्नी जी चिंता बहुत वड्डा भार साडे सिर ते बन जाता है, और इंज लगता है कि असी बहुत ज़्यादा भार नूं अपने जीवन च खिंचते जा रहे हैं, असी एक भार के हेठा जिंदगी बतीत कर रहे हैं। संसारिक तरीका, पहली गल इंसान संसारिक तरीका किहड़ा अपनाउंदा है, वो
जो है मैडिकल जाता है ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, नींद ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ कि ਮੈਨੂੰ थोड़ी चिर ਲਈ आराम मिलूगा। अगले सुबह उठदा फिर वही चिंता। दूसरी गल, इंसान की करता है, लोग की करते, जवान की करते, वो नशा यूज़ करना शुरू कर देंगे हौली हौली। नशे के वो आदी हो जाते और नशा उन्होंने मार दिंदा है, खराब कर दिंदा। नशे ने बहुत सारे घर खराब कर दिते अज की डेट दे विच। नशे की गोलियां खा के शांति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, नींद की गोलियां खा के थोड़े चिर लिए शांति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वो कल्ले रहना शुरू कर दिंदा है। वो इंसान मनुख बहुत सारी चिंता दे विच वो कल्ला रहना शुरू कर दिंदा है। उन्होंने किसी का बुलाना पसंद नहीं आता, चिड़चिड़ापन जो उहदे अंदर आ जाता है। लास्ट दे विच जदों उहदा कोई भी तरीका नहीं काम करता, लास्ट दे विच वो कहता मैं अपने आप को खत्म कर लेना है, आई विल किल माई सैल्फ। वो कहता मैं अपने आप को खत्म कर देवांगा। कि अपने आप को खत्म कर लेना तुहाडी चिंता का हल है? अगर तुसी इस तरह की परेशानी च होकर निकल रहे हो तो मेरे प्यारे अज का वचन तुहाडे लई है। बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंता के कारण, वरी के कारण, एंगजाइटी के कारण डिप्रैशन दे विच आ गए, तनाव दे विच आ गए, स्ट्रैस दे विच आ गए, भार दे हेठां आ गए और उन्होंने खुदकुशी कर ली। मेरे प्यारे उन्होंने कोई होर तरीका नहीं लभ्या। अज मैं तुहाडा ध्यान दूसरे तरीके वाल लैके जाना चाहता जो कि सही है अते ओ परमेश्वर जिसने सानू बनाया है वो चाहता है असी वो तरीका इस्तेमाल करिए। वो है परमेश्वर का तरीका अते परमेश्वर की चाहता है। परमेश्वर के वचन दे विच इस तरह लिखिया है, मैं तुहाडे लई वचन नूं पढ़ांगा। परमेश्वर का वचन सानू दसदा है, मत्ती दी अंजील 11 अध्याय अते उहदे 28 वचन दे विच इस तरह लिखिया है, हे सारे थके होया अते भार हेठ दबे होया मेरे कोल आओ तां मैं तुहानू आराम देवांगा। कम टू मी एंड आई विल गिव यू पीस। परमेश्वर कह रहा है बोझ हेठा दबे लोगो, भार हेठा दबे लोगो। केड़ा भार? चिंता का भार। केड़ा बोझ? चिंता का बोझ लैके कित्थे जाओ? कल्ले रहना ना शुरू करो, लोगों ते क्रोध करना बंद करो, चिड़चिड़ करना बंद करो, बोझ च रहना बंद करो। परमेश्वर कह रहा मेरे को आओ, कम टू मी। नशे की गोलियां खाने की लोड़ नहीं है, नींद की गोली खाने की लोड़ नहीं है। संपूर्ण छुटकारा, संपूर्ण आज़ादी परमेश्वर तुहानू तुहाडी सारी चिंता तो देवेगा। अज परमेश्वर का वचन कहता कम टू मी एंड आई विल गिव यू पीस। मेरे को आओ अते मैं तुहानू आराम देवांगा। और परमेश्वर का वचन सानू दसदा है जो असीं पढ़दे हां पहला पतरस अते उहदा 5 अध्याय अते उहदा 7 वचन ते इस तरह लिखिया है, लिखिया अते अपनी सारी चिंता उस उत्ते सुट छड्डो क्यों जो वो तुहाडा फिक्र करदा है। परमेश्वर का कलाम कह रहा वो तुहाडा फिक्र करदा है, इस करके अपनी सारी चिंता उन्होंने दे देवो। की करना? संपूर्ण शांति दे लई। पहली गल उहदे कोल आना है, फिर वो आराम देवेगा। कोल आके करना की है? पहला पतरस 5:7 उन्होंने अपना बोझ दे देना है, उन्होंने अपना बोझ दे देना है ताकि परमेश्वर, क्योंकि साड़ी फिक्र परमेश्वर करे। पहली गल अपनी फिक्र आप करना बंद कर दो। असाधारण फिक्र की गल कर रहा मैं, एक गलत फिक्र करना बंद कर दो कि मेरा की होगा, मैनू कुछ हो ना जाए, ये ना हो मेरा की बनेगा, अब मैं की होएगा, मेरा परिवार किद्दां चलेगा, मैनू कुछ हो ना जाए, मैं बीमारी ना मरना जावां अते होर बहुत सारे डर। ये सारे चिंता तो परमेश्वर अज तुहानू आज़ाद करना चाह रहा है कि ये मेरे घर च कभी शांति आऊगी कि नहीं आऊगी, हमेशा लड़ाई झगड़ा ही चलता रहता। परमेश्वर कह रहा है मेरे को आओ। पहला कम टू गॉड, परमेश्वर को आओ। दूजी गल उन्होंने अपनी सारी चिंता दे दो अते फिर की होगा? ज़बूर नंबर 34 अते 4 आयत दे विच इस तरह लिखिया है, मैं यहोवा कोल गया अते उसने मेरी सुन लई अते उसने मैनू सारे डरां तो मैनू आज़ाद किया। परमेश्वर को जाना, उन्होंने बोझ देना अते वो तुहाडी सुनेगा अते तुहानू वो आज़ाद कर देवेगा। आमीन। बाइबल दे विच एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक उदाहरण है, बाइबल दे विच मैं दसांगा तुहानू। बाइबल दे विच इस तरह लिखिया है, मरकुस दी अंजील 5 अध्याय 21 वचन, जैरुस अते उसकी बेटी पढ़ांगे। जब यीशु बेड़ी उत्ते फिर पार लंघिया तां एक वड्डी भीड़ उस कोल इकट्ठी हुई अते वो झील दे कंढे उत्ते सी अते समाज के सरदारां विचों जैरुस नामे एक मनुख आया अते ओनू वेख के उहदे पैरी पै गया अते उहदी बहुत मिन्नत कीती, जो मेरी छोटी बच्ची मरनो है, चल के उहदे उत्ते अपना हथ रख तां जो वो चंगी हो जाए अते जिउंदी रहे। सो इस जगह ते असीं पढ़िया
कि जो प्रभु यीशु मसीह एक जगह ते सीगे, उस जगह दे विच प्रभु दे आले दुआले बहुत सारी भीड़ इकट्ठी सी और उस भीड़ दे विच जैरुस नाम दा बंदा आया जो कि समाज के सरदारां दे विचों एक सी। अते वो किहड़ी समस्या किहड़ी चिंता नूं लैके परमेश्वर दे प्रभु यीशु मसीह दे कोल आया। वचन अनुसार वो आया परमेश्वर को। उस तो पहली गल परमेश्वर को आना, दूजी गल उन्होंने बोझ दे देना, ठीक है। और इत्थे परमेश्वर को आया अते उसने क्या, उन्हें अपनी परेशानी दसी। सब तो पहला आके परमेश्वर के चरणों च आ गया, मतलब परमेश्वर के चरणों के विच आके डिग गया, लिखा परमेश्वर के पैरी पै गया आके। तो सब परमेश्वर को आना तो पूरी तरह समर्पण कर देना। उन्हें समर्पण करता अपनी चिंता तो आज़ाद होने लई। डॉक्टर कहता गोली खाओ तुसीं खांदे हो, डॉक्टर कहते इन्ने दिन दवाइयां खाणियां तुसीं खांदे हो, और संसार जो कहता है सब कुछ कर दो, कल्ले रहना शुरू कर दो, जो तुहाडा मन कहता अपने आप को मार दे, सब कुछ कर दो। पर अज ये तरीका जो तुहानूं मारूगा नहीं बल्कि जीवन देऊगा। समझ रहे। सो परमेश्वर का वचन कह रहा कि जैरुस जो आया अपनी बेटी के विषय को लैके कि प्रभु मेरी बेटी जो कि छोटी है अते बहुत बीमार है अते मरण वाली है, प्रभु प्लीज़ प्लीज़ मेरे नाल चलो अते मेरी बेटी ते हाथ रखो अते उन्होंने चंगा कर दो मेरे परमेश्वर, दे अंदर जीवन दे दो मेरे परमेश्वर। सो बाइबल दसदी है कि प्रभु यीशु मसीह उहदे नाल गए, इत्थे विश्वास दे नाल प्रभु को आया कि आना कितना विश्वास नाल। फिर की करना, सारा बोझ उन्होंने दे देना। उन्हें दे दिता, बोझ भी दे दिता, समर्पण भी कर दिता। हुण प्रभु का काम है कि प्रभु किस तरह नूं आज़ाद करते हैं। अते जदों असीं अगे पढ़ते हैं प्रभु नूं उत्थे पहुंचण ते देरी हो जाती है, क्योंकि प्रभु 12 साल की रोगन नूं चंगा करते हैं। और जदों देरी हो जाती है उत्थे की हुंदा, जदों असीं 35 आयत तो पढ़ते हैं लिखिया आ, वो अजे बोलता ही सी कि समाज के सरदार के घरों लोगों ने आण के आख्या तेरी धी मर गई है, गुरु नूं क्यों होर खेचल पाउंदा है। लोग की आए एक बैड न्यूज़ लैके आए, कहते तेरी कुड़ी मर गई है, हुण तंग ना कर प्रभु यीशु मसीह नूं, परमेश्वर नूं पर तंग ना कर, वापस चल जा घर, तेरी कुड़ी तो मर गई है। एक नैगेटिव न्यूज़ लैके आए। एक गल उहदी चिंता नूं होर वधाउण वाली सी। पर मैं तुहानूं दसना चाहता मेरे प्यारेओ, उन्हें अपनी सारी चिंता प्रभु नूं दे दी सी और लिखा है अपनी सारी चिंता मैनू दे दे क्योंकि मैनू तेरा फिक्र है। परमेश्वर के बेटी अते बेटे अज ये वचन तेरे लिए है, सारी चिंता परमेश्वर नूं दे दे। और जो इसने अपनी सारी चिंता दे दी है कि ये चिंता इनू करनी चाहिए है, इंसान के नाते इन्नी वड्डी खबर सुन के बहुत सारी चिंता करनी चाहिए है। वो रोन लग पैंदा, चिंता करन लग पैंदा अते वो परमेश्वर को भज के वापस अपने घर चले जाता। वो कर सकता सी इदा, पर वचन दसदा उन्हें पता की किया जो उन्हें प्रभु के कोल ही जब आ गया। लिखिया आ जो वो लोगों ने बोलिया कि प्रभु तो तू हुण चले जा क्योंकि तेरी कुड़ी तो मर गई है, प्रभु नूं होर तंग ना कर। तो प्रभु यीशु ने की किया, वो उन्होंने गल कट दी। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने उस गल की जो वो आखते सन परवाह, उन्हें की किया कि जो वो लोग आख रहे आ तू उन्होंने परवाह ना कर। पंजाबी की बाइबल च लिखा परवाह ना कर। जो लोग कहते नैगेटिव न्यूज़ तुहाडे को लैके आते कि तू नहीं बचना, तू नहीं ठीक होना, तुहाडे घर शांति नहीं आ सकती, तू कदे सफल नहीं हो सकता, तू कदे पास नहीं हो सकता, तुसीं हसबैंड वाइफ कदे खुश नहीं रह सकते। सो उन्होंने कहो, परमेश्वर ने कहो मैं परवाह नहीं करनी। परमेश्वर ने की किया, डू नॉट वरी, परवाह ना कर इन्हां दी, बॉदर ना कर इन्हां दे बारे। जो ये लोग नैगेटिव न्यूज़ लैके आए ये बारे बॉदर ना कर। जे तुसीं परमेश्वर के चरणों से आ ही गए हो तो प्लीज़ अपनी चिंता बारे सोचना बंद कर दो, अपनी चिंता करनी बंद कर दो। परमेश्वर ने कहा परवाह ना कर जो वो लोग कहते हैं, पर वही कर जो मैं कह रहा। परमेश्वर ने कहा कि समाज के सरदार नूं आख्या ना डर केवल नेचा कर, ना डर केवल नेचा कर। जो साढ़े अंदर चिंता आ जाती प्रभु के चलन के नाल बावजूद भी, इसका मतलब है अविश्वास। परमेश्वर खुद कह रहे हैं ना डर केवल नेचा कर, ना डर केवल नेचा कर। तो लिखिया जो प्रभु यीशु मसीह अपने कुछ चेलियां नूं लैके अंदर गए और उत्थे देखा कि बहुत सारे लोग अंदर रौला पा रहे सन, रोंदे सन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कुड़ी मरी नहीं बल्कि सुती पई है। और जो प्रभु यीशु ने उस रब ने उस परमेश्वर ने कहा कि ये सुती है मरी नहीं है, सारे हसन लग पे। थोड़ी देर पहले तो सारे रो रहे थे, जिहड़े लोग रो रहे वो मिनट च हसन भी लग पे। एक मिनट च बदल गया कि इस टाइम माहौल किहड़ा है, तुसीं हसन लग पे हो। सो लोग बाहर को देख के रिएक्ट करते हैं। अगे लिखिया प्रभु यीशु मसीह ने सारे नूं बाहर कढ़ता। उस तो बाद अपने चेलियां नूं अंदर लैके गए और वो फैमिली जिहड़ी प्रेयर करने आए। जो प्रभु यीशु मसीह अंदर गए और अते उसने कुड़ी का हथ फड़ के लिखिया आ, कुड़ी का हथ फड़ के उसनूं कहा तलीता तलीता कूमी, जिहदा अर्थ है कि हे कन्या मैं तेनू आखदा हाँ उठ। मतलब प्रभु ने प्रार्थना की, उहदी चिंता
ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੰਤਾ ਤੂੰ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਪਹਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਲੀਤਾ ਕੋਮੀ, ਹੇ ਕੰਨਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉੱਠ। ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਝੱਟ ਉੱਠੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਆਣਾ, ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। God bless you.